Standard 9 English. My dear students, in this video we are going to study chapter 1.4 of English. Have you thought of the verb have? How many times do you use the verb have in your conversation or writing? Try to keep a count of it for an hour or so. What do you find? जो word I have, that word is used in everyday conversation many times for many purposes. अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए दिन भर के बातचीत में हैव जो वर्ड है, it is used many times. Perhaps you have always thought of this versatile verb as an auxiliary verb or a helping verb as we call it. Perhaps means शायद आप इसको it is a versatile verb, means a verb which has so many functions at the same time. A versatile means at a time a person or a thing, anything has a lot of qualities, acting as a acting in many roles is called a versatile. Is called the word, means the meaning of the word versatile is at the time all rounder, means skilled in so many things, that is called a versatile. Versatile verb, have को versatile verb बोला गया है. Why? Normally we think that have is an auxiliary verb, otherwise a helping verb. दोनों word एक ही मतलब है, auxiliary verb या helping verb. Most of us know that only, but have is used as main verb also. Have has so many functions. Have जो verb है उसको बहुत सारे functions होते हैं. The helping verb have is used to form what we call perfect tenses. When I was taking your tense portion, and I'm going to restart it again, वापस से उसको दोबारा करने वाला है. Tenses. There are 12 tenses in English. Out of those, 3 perfect tenses are there: present perfect, past perfect, and future perfect. We use this word have in all those tenses. ये सभी perfect tenses में हम have use करते हैं. They have come, for example, it is present perfect tense. I had clean forgotten all about it. I had forgotten all about it. That will be the sentence. So this is past perfect tense. And to make negative sentence means sentence में नहीं डालना है. We have to add the word not. Not word डालने के लिए we have to use different auxiliary verbs. So in that case also have is used. वहाँ पर भी have use करते हैं. For example, they haven't come. I hadn't forgotten it. उन लोग आए नहीं हैं. उन लोग मैं भूला नहीं हूँ. But as a main verb, it is used to mean much more than you think. But as a main verb, already we have studied about have as an auxiliary verb or a helping verb. But एक main verb के रूप में have का purpose बहुत सारे हैं. The duty which have is doing are many. बहुत सारे duties करते हैं. So here are a few examples we use very frequently. यहाँ पर कुछ example दिया हुआ है. अक्सर frequently यानी बार बार repeatedly we use the word have. So let us see what are the chances here. What are the examples where we use have very frequently. In the following sentences, have indicates the possession or ownership of something. अभी नीचे जो दिया हुआ sentences में have indicates यानी have shows possession. Possession क्या है? Possession यानी I possess a house means एक घर मेरा खुद का है. किसी का खुद का कुछ चीज़ होना, that is possession. Ownership भी own मतलब कोई चीज़ को हम own करना यानी हमारा हो जाना, that is ownership. Possession और ownership almost meaning same है. जैसे मेरे पास एक बिल्ली है, I have a pet cat. मेरे पास एक नया पेन है, I have a new pen. तो that is the possession because I possess the pen, I possess the pet cat. Okay, उसके लिए वो possession दिखाने के लिए have use करते हैं. I have a new pen. Do you have a cycle? क्या आपके पास एक साइकिल है? That means do you possess a cycle? Do you own a cycle?
आवर स्कूल हैज 6 कंप्यूटर. एक स्कूल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास 6 कंप्यूटर है. दैट मीन्स इट इज द ओनरशिप ऑफ द स्कूल. इट शोज दैट वर्ड हैव इधर हैज, स्कूल सिंगुलर है, दैट्स वाई इट बिकेम हैज. अगर प्लूरल होता तो हैव होता, सिंगुलर है तो हैज होता है. बट आई सिंगुलर होने के बावजूद भी हैव यूज करते हैं, क्योंकि आई एक स्पेशल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. और आई के साथ एम इस आर में स्पेशली एम आता है. हैव हैज हैड में प्लूरल वाला हैव आता है. डू डस डिड में प्लूरल वाला डू आता है. तो वैसा आई का बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो इसलिए आई के साथ हैव आया. बट आवर स्कूल इज अ सिंगुलर नाउन, सो हैज, हैव, हैज, हैड, all three are same verb, only in past tense, present tense, and present tense singular, present tense plural. So our school has 6 computers. Then the municipality has 6 vans and 2 cars. ये भी म्यूनिसिपैलिटी का ओनरशिप है. So, ये सिचुएशन में हैव हम यूज करते हैं. यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी भी सिंगुलर था, दैट्स व्हाई इट इज हैज. नाउ इन सम केसेस हैव इज यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशनशिप. अभी कोई केसेस में रिलेशनशिप को बताने के लिए, समझो मेरा एक भाई है, तो आई कैन से दैट आई हैव अ ब्रदर. मेरा एक भाई है, दिस मीन्स इट शोज द रिलेशनशिप. वो मेरे भाई के साथ का रिलेशनशिप दिखाते हैं. द कपल डू नॉट हैव चिल्ड्रन. व्हाट यू मीन बाय कपल? हस्बैंड वाइफ. तो कपल डू नॉट हैव चिल्ड्रन, कपल को कोई बच्चे नहीं है. सो दैट ऑल्सो शोज द रिलेशनशिप. यहाँ पर डू नॉट हैव लिखा, वी कैन नॉट से द कपल हैजंट चिल्ड्रन करके लिख नहीं सकता. उसके लिए उसके साथ नेगेटिव करने के लिए डू यूज करना पड़ता है. द कपल डू नॉट हैव चिल्ड्रन, द कपल हैवंट चिल्ड्रन करके बोलता नहीं है. And in some cases have is used to indicate this over relationship. Now third one, I don't have a brother. मेरा कोई भाई नहीं है. I don't have a brother, I do not have a brother. I haven't a brother नहीं बोलते. ओके, यानी have has had के डायरेक्ट नॉट नहीं डालता है when it is used as a main verb. वो मेन वर्ब का काम करते हैं. इन ऑल दी सेंटेंसेस हैव इज द मेन वर्ब. पर जहाँ पर नॉट डालना होता है, यू कैनॉट ऐड नॉट विथ हैव. हैव के साथ डायरेक्ट नॉट नहीं डाल सकता. यू हैव टू यूज ईदर डू, डस और डिड टू पुट द वर्ड नोट, NOT. So I don't have a brother, otherwise I do not have a brother. We also use have to refer to events, activities और and experiences. कोई event यानी कोई celebration हो रहा है, कोई event मीन्स कोई फंक्शन हो रहा है, या फिर कोई एक्टिविटी है, या कोई एक्सपीरियंसेस है, देन इन दैट केस ऑल्सो वी यूज हैव. आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ इन द रिवर. मैं एक नदी में एक क्या बोलते हैं स्नान करने जा रहा हूँ. उसको बोलने के लिए वी यूज लाइक आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ इन द रिवर. हियर वी यूज हैव, बट उसका मीनिंग टोटली अलग हो गया, कौन अलग सिचुएशन हुआ. लेट अस हैव अ पार्टी फॉर योर बर्थडे. यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है. लेट अस हैव अ पार्टी फॉर योर बर्थडे. द क्लास हैज़ अ शॉर्ट ब्रेक एट 11 AM. क्लास एक शॉर्ट ब्रेक लेने वाला है एट 11 AM. डिड यू हैव अ गुड टाइम एट द वेडिंग. क्या शादी में अच्छा वक्त बीता? डिड यू हैव अ गुड टाइम एट द वेडिंग. आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग. आज शाम मेरा एक मीटिंग है. तो देखो कहाँ कहाँ कौन से सिचुएशन में हैव यूज़ किया. वी कैन नॉट स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ दैट हैव. हैव का स्पेसिफिकली हम मीनिंग उठाकर नहीं बता सकता, बट व्हेन इट इज़ एडेड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स. अलग अलग तरीके का सेंटेंस में जब इसको डालोगे, ऐड करोगे, तो उसका अलग अलग मीनिंग बन जाता है. नाउ हैव इज ऑल्सो यूज टू refer a medical or physical condition. मेडिकल कंडीशन यानी कुछ बीमारी या कुछ ऐसा सिचुएशन है, फिजिकल कंडीशन, बॉडी को कुछ अनईजीनेस हो रहा है, देन वी यूज हैव देयर ऑल्सो. जस्ट लाइक ओ प्लीज कीप क्वाइट, आई हैव अ हेडेक. बात करते हैं ना ऐसा, थोड़ा शांत बैठो, मुझे हेडेक है. मुझे हेडेक है बताने के लिए वी यूज द वर्ड हैव. आई हैव अ हेडेक.
यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस, ही हैज़ अ कोल्ड. व्हाट डू मीन बाय ही हैज़ अ कोल्ड? कोल्ड मीन्स यहाँ पर सर्दी. उसे सर्दी है. ही हैज़ अ कोल्ड. सर्दी जुकाम होता है तो उसको कोल्ड कहते हैं. ही हैज़ अ कोल्ड. ग्रैंडफादर हैड अ हार्ट अटैक. ग्रैंडफादर को एक हार्ट अटैक हुआ था. ग्रैंडफादर हैड इज पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई इट इज हुआ था, पास्ट हो गया. ग्रैंडफादर हैड अ हार्ट अटैक. Now, what is given here, you see, in sentences where have is used as a main verb, it is always used in the simple present or simple past. The present continuous form is not used in such cases. We do not say, I am having a bicycle, he is having a cold, I am having a lot of homework. ये अक्सर हम में से कोई ना कोई बोलते रहता है इस तरीके से. So, my children, see here we are talking about two situations. One is have as a main verb, other one have as an auxiliary verb. Have as an auxiliary verb आप use करोगे, so it is in the perfect tense only. Perfect tense. Auxiliary verb में use करेंगे तो past perfect, present perfect, future perfect. इसमें use करते हैं. But when have, the word have is used as a main verb. Have को main verb में use किया. What do you mean by using as a main verb? That means the sentence does not have any other verb. Only have is the single verb in that. Have अकेला ही एक verb रहेगा. No other verb it has. If a sentence does not have any other verb than have, then that have is used as a main verb. तो वैसे सिचुएशन में सेंटेंस में हैव हैज ऐड या तीनों में से कोई और वर्ब नहीं है तो उसे मेन वर्ब में यूज किया हुआ है. In that case, have is used as the main verb. That tense is simple present or simple past. ये दो ही टेंस में have को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं. Simple present, otherwise simple past. And if we talk about any of the continuous tense means present continuous, past continuous or future continuous. Any of the continuous tense, have cannot be used as a main verb. कंटिन्यूस टेंस में हैव को मेन वर्ब में यूज नहीं कर सकता. लाइक आई एम हैविंग अ बाइसिकल, हैव उधर का मेन वर्ब है तो उसको आईएनजी नहीं लिख सकता. जहाँ पर सिंपली ये टेंस का नाम छोड़ दो, सिंपली ये मीनिंग है कि कोई भी एक सेंटेंस में हैव वर्ब है मेन तो उसमें आईएनजी आप यूज़ नहीं कर सकते. जैसे हम कभी बोलते हैं आई एम हैविंग फीवर, ऐसा बच्चे कभी नहीं बोल सकता. इट इज़ रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग, या इवन कोलोकियली ऑल्सो रॉन्ग. बोलने ना लिखने कोई भी तरीके से ये राइट नहीं है. दैट इज़ रॉन्ग. आई एम हैविंग क्या था, आई एम हैविंग अ हेड एक, नो इट्स रॉन्ग. आई हैव अ हेड एक ऐसा बोलेंगे हम. आई एम हैविंग अ बाइसिकल, ये गलत है. आई हैव अ बाइसिकल. he is having a cold, it's wrong. He has a cold. I am having a lot of homework, that also हमेशा अक्सर आप शायद बोलते होंगे, याद करके देखो. I am having a lot of homework, that is wrong way of talking. I have a lot of homework is correct. Similarly, it is not used in negative form as the main verb, that also I told you. नेगेटिव बनाने के लिए, सेंटेंस में नोट डालने के लिए, you never use have when it is used as a main verb. हैव के अलावा कोई और वर्ब नहीं है तो डोंट यूज नॉट विथ हैव. अगर हैव को ऑक्सिलरी में यूज किया हुआ है तो यू कैन यूज नॉट. जैसे अभी ही हैज अ कार एक सेंटेंस है, उसमें नॉट डालना है. वी कैन नॉट यूज ही हैज इन द कार, वो गलत है. ही डू नॉट हैव अ कार आपको सॉरी ही डज नॉट हैव अ कार आपको यूज करना पड़ेगा. सेंटेंस अगेन, सेंटेंस आई हैव इज ही हैज अ कार. ओके, आई विल राइट ऑन दिस, जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड. ही has a car. I want to change the sentence into negative. So here has is the alone only one verb. That means it is acting as a main verb. ये main verb का काम करता है, main verb. Okay? तो अगर ये auxiliary verb होता तो इसमें has के साथ not डालने में कोई दिक्कत नहीं. But here in this word sentence there is no other verb. That means has is a main verb. So here you cannot use he hasn't या हैज़ नॉट अ कार. दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है. हियर यू हैव टू यूज ही. हैज़ को तोड़ना पड़ेगा, वी विल गेट डस. डस नॉट
डस के बाद हैव आएगा नेक्स्ट, फर्स्ट कॉलम हैव होता है. ही डस नॉट हैव अ कार, इस तरह सेंटेंस बनेगा. ओके. In the same way, the next one is I haven't a cold. It is wrong because have is the single sentence, sorry, single verb, that is only main verb. So you cannot use int, yeah, not with the main verb of have. Never use not with the main verb. मेन वर्ब के साथ कभी नॉट नहीं यूज करता. तो यू हैव टू टेक सेलेक्टर एंड ऑक्सिलरी वर्ब. हैव के अंदर डू है बिकॉज हैव इज द फर्स्ट कॉलम. हैव हैज हैड, बराबर. हैज, हैव और हैज फर्स्ट कॉलम है. हैज में डस होता है, हैव में डू होता है. सो यू विल राइट आई डू नॉट हैव अ कोल्ड. आई डू नॉट हैव अ कोल्ड. सो हैव फन एक्सप्लोरिंग द यूजेस ऑफ हैव. अब देखो, हैव को एक्सप्लोर करने के बाद यानी अच्छी तरह रिवील करने के बाद क्या मज़ा आ रहा है हैव के बारे में जानने. यू कैन सर्च एंड फाइंड आउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ हैव एंड सम वर्कशॉप इज गिवन. गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ योर ओन. ओके, बाय बाय.